Morning students, how are you all? I hope you all are fit and fine and doing your science work regularly. Yesterday we discussed about physical properties of metals and non-metals, and there is recapitulations of physical properties of metals and non-metals. We discussed that in physical properties, physical state, melting and boiling point, density, hardness, luster means shining appearance, malleability and ductility, tensile strength, conductivity and sonority. This topic we discussed yesterday. This is known as physical properties. Today we will start a new topic, that is chemical properties. What is the meaning of chemical? Chemical means what happens when metal react with metal or non-metal react with oxygen, hydrogen and acid, or you can say reaction with alkalis. So first we start with reaction with oxygen. As you can see in this picture beta, we are taking magnesium ribbon and ignite the magnesium ribbon and make a powder foam. Now put this powder foam on a glass slab, add water in the magnesium ribbon. Now put red litmus paper. You will observe that red litmus paper turn into blue. This shows that when metals react with oxygen and water, it form a hydroxide. Hydroxide means its nature will be basic. Again listen carefully beta. As you can see in this activity, इस एक्टिविटी में किया क्या, हमने मैग्नीशियम रिबन लिया बेटा. मैग्नीशियम रिबन को जब हम इग्नाइट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा. लुक हियर, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल्स लिए, 2 मॉलिक्यूल्स. ऑक्सीजन नेचुरल फॉर्म में ही O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. नेक्स्ट क्या किया हमने, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब क्या है, दैट मीन्स जब हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं, और आपको पता है कि एयर में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन गैस. इसको बर्न किया तो ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बनाया इसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड. फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया. फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इसको बर्न किया, बर्न करा तो मैग्नीशियम क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. सेकेंड स्टेप में मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में जब हम पुट करेंगे, देन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH twice. And as you know that hydroxide and nature of hydroxide are basic. So इस रिएक्शन को करने के लिए हमने क्या कर, हाउ विल यू केम टू नो दैट दीज आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर. टू चेक वेदर given metal is acidic or basic, we have to take litmus paper. We are taking red litmus paper. As you can see, red litmus paper turns into blue. This shows that given metal is basic in nature. आपको पता है बेटा, अगर कोई मटेरियल रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, दैट मीन्स जो भी आपके पास सोल्यूशन है वो बेसिक होगा. और अगर ब्लू कलर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, दिस शोज that material is acidic in nature. In this case, metal is basic. Why? Because red litmus paper turns into blue. तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है बेटा, what happens when metals react with oxygen? मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, किस नेचर को शो करेंगे, दीज आर बेसिक इन नेचर. अब आपसे रीजन पूछा जाएगा व्हाई दीज आर बेसिक इन नेचर, तो आप पहले 2 रिएक्शंस करके दिखाओगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. देन मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. And when we take litmus paper, then we observe that red litmus paper turns into blue color. This shows that metals are basic in nature.
Like this, potassium, sodium, calcium, these are highly reactive metal. They react with oxygen present in air even at room temperature. हाईली रिएक्टिव मीन्स बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं. वो कौन से हैं? पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम. सोडियम तो इनफैक्ट अपने आप से ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा? ऑक्साइड बनाएगा. नेक्स्ट आपको गिवन है, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ चारकोल. इन दिस एक्टिविटी वी टेक मेटल. Now in activity 6 we are taking charcoal. As you know that charcoal is a form of carbon and carbon is a non-metal. So it is clear to you. In fifth activity we take metals. Now we are taking a non-metal and take small piece of charcoal in the deflagrating spoon. As you can see here, this spoon deflagrating. स्पून को आप इस तरह से हैंग कर रहे हो. दिस स्पून इज नोन एज अ deflagrating spoon. Now ignite it. Put the spoon in gas jar and cover with the lid. As you can see in this picture beta, what we are doing, we are taking charcoal in this spoon and cover it. Ignite it. Ignite means आपको छोटी सी स्पार्क देनी है, तो ये बर्न हो जाएगा चारकोल. And now put water in this charcoal. Again cover it and leave it for few minutes. कुछ मिनट के लिए आप इसको छोड़ दोगे. After few minutes, when you take litmus paper, you will observe that blue litmus paper convert into red color. This shows that non-metals are acidic in nature. क्लियर हुआ बेटा? इस केस में हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या लिया? चारकोल लिया. चारकोल इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल. इग्नाइट इट. नाउ पुट वाटर इन दिस एंड लीव इट फॉर few minutes. Now pour this water in this dish and take litmus paper. We will observe that blue litmus paper turns red. This shows that non-metals are एसिडिक इन नेचर. तो आपके 2 क्वेश्चन बन गए बेटा यहाँ से. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया? दैट मेटल्स जो हैं, मेटल्स बेसिक होते हैं नेचर में एंड नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर. तो अगर आपको वो प्रूव करने के लिए कहे शो दैट नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, सो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट दीज 2 रिएक्शंस एंड आफ्टर these reactions you will write that in this case blue litmus turns into red. Now look at these equation beta. We are taking carbon. Carbon react with oxygen and it form carbon dioxide. कार्बन जब वाटर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट केस में क्या किया? चारकोल को बर्न किया एंड चारकोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन. तो चारकोल को हमने जो सिंबल राइट किया वो क्या है? सी. सी इज सिंबल ऑफ कार्बन एज वेल एज चारकोल. नेक्स्ट वी आर टेकिंग ऑक्सीजन. वाई वी आर टेकिंग ऑक्सीजन? बिकॉज हम चारकोल को बर्न कर रहे हैं एंड आपको पता है कोई भी मटेरियल है वो बर्न कब करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो बर्निंग करी हमने, तो आपने यहाँ क्या राइट करा? ऑक्सीजन. इट शोज दैट बर्निंग इज टेकिंग प्लेस. तो आपने जब कार्बन की, चारकोल की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराई, दैट मीन्स चारकोल को जब बर्न किया तो ये क्या बना रहा है? CO2. आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड को जब आपने वाटर में पुट किया, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में पुट कर रहे हो तो ये क्या बना रहा है? H2CO3. दैट मीन्स कार्बोनिक एसिड. देखो नेम से क्लियर हो रहा है, कार्बोनिक एसिड. अब आपने चेक कैसे किया? लिटमस पेपर से. लिटमस पेपर को जब आपने रेड लिटमस पेपर लिया तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, बट ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो गया. दिस शोज दैट नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर. Next is aluminium cookers are anodized from inside so that in the pressure of air and water a protective layer of Al2O3 get forms there. This layer then prevents further oxidation of aluminium. Anodized means aluminium cooker के अंदर हम क्या करते हैं बेटा? एक लेयर लगा देते हैं. उस लेयर से क्या बन जाएगा? Al2O3. मतलब एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होगा? Al. ऑक्सीजन का O2. और जब रिएक्शन हुई एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की तो क्या बना? Al2O3. तो अब जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है. एज यू कैन सी लेफ्ट साइड में एल्यूमिनियम 1 है बट प्रोडक्ट में 2 है. तो आप क्या करोगे? इस एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करोगे.
नाउ लुक हियर, ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर बेटा, बट हेयर यू कैन सी दैट इन रिएक्टेंट 2 ऑक्सीजन गिवन है, तो हमने क्या करा इसको 3 से मल्टीप्लाई। नाउ 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये कितना हो गया 2 3 ज़ा 6। एल्यूमिनियम कितने हो गए 2 2 ज़ा 4, तो आपने 4 करने के लिए इसको यहाँ क्या राइट कर दिया 4। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा से देखो बेटा, Al की जब हमने O2 के साथ रिएक्शन की तो क्या बना, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज Al2O3। बट रिएक्टेंट में 1 एल्यूमिनियम था, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, प्रोडक्ट में 3 ऑक्सीजन है। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। हमने क्या किया, रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, एंड प्रोडक्ट में कितने गिवन है बेटा आपको 3, सो मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ लुक हियर, एल्यूमिनियम्स आर 2 2 ज़ा 4, बट इन रिएक्टेंट देयर आर only 1 aluminium, then you will multiply this aluminium by 4. Now your equation is balanced. एल्यूमिनियम कुकर्स में क्या करते हैं बेटा, एनोडाइज किया जाता है इसको, दैट मीन्स Al2O3 की एक लेयर बन जाए, एंड दिस लेयर प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम जब लेयर लगा देंगे तो इसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव नहीं होगी। रिएक्शन विद वाटर, फर्स्ट केस में हमने डिस्कस किया था बेटा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक और बेसिक नेचर को शो कर रहे हैं। नाउ वी विल डू रिएक्शन विद वाटर। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर वी आर टेकिंग मैग्नीशियम पीस, एंड यू नो दैट मैग्नीशियम इज अ मेटल। नाउ in one test tube we are taking magnesium and put water in this test tube. Take another test tube and cover it with first test tube. Now burn it, give flame to it, warm the lower tube over the flame. You will observe that some bubbles are producing here. You are observing that some bubbles are produced here, and when we take matchstick near it, it produces a pop sound, crackling sound produce करती है. This shows that hydrogen gas is present. इस केस में किया क्या बेटा, हमने टेस्ट ट्यूब ली, हमने टेस्ट ट्यूब में क्या लेके चल रहे हैं मैग्नीशियम पेस्ट, वाटर ऐड किया हमने, एंड फ्लेम से क्या करेंगे, इसको बर्न करेंगे। अनदर टेस्ट ट्यूब हमने इन्वर्ट करी। टेस्ट ट्यूब क्यों लगा रहे हैं बेटा हम, ताकि जो भी गैस इसके अंदर प्रोड्यूस्ड होगी वो गैस एयर के अंदर एटमॉस्फेयर में ना जाए, वो इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, जब हम इसको फ्लेम दे रहे हैं हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं दैट बबल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं यहाँ पे। दीज बबल्स हम चेक करेंगे ये बबल्स हैं किस चीज़ के, दैट मीन्स विच गैस इज प्रेजेंट इन दिस केस। जब आपने इस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब को मैस्टिक के पास लेके आए तो आपको एक क्रैकलिंग साउंड सुनाई, ठीक है। दिस क्रैकलिंग साउंड शोज दैट हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूसिंग इन दिस केस। क्लियर हुआ बेटा। मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस। फर्स्ट केस में हमने किया था, मेटल्स जब रिएक्ट कर रहे थे ऑक्सीजन के साथ में तब क्या कर रहे थे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे, दैट मीन्स बेसिक नेचर को शो कर रहे थे। बट व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, मतलब एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। मेटल्स डिफर इन देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। बेटा डिफरेंट मेटल्स जो हैं उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल सम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव लाइक sodium, potassium. These are very reactive metals, and some metals are not so much reactive. That's why we are giving flame to this metal. मैग्नीशियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो इसलिए मैग्नीशियम को हमने क्या किया, जब वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो ये रिएक्शन जल्दी से नहीं होगी, तो हम फ्लेम दे रहे हैं इसको, मतलब बर्न करेंगे तो जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। बट कुछ मेटल्स हैं लाइक सोडियम, पोटाशियम, दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। ये अपने आप से नेचर में रिएक्ट कर लेते हैं एंड इट कैच फायर।
हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करेंगे, दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी इस केस के अंदर एंड इट विल कैच इज फायर। तो इसीलिए हम इन मेटल्स को कहाँ स्टोर करते हैं? अंडर कैरोसिन। कैरोसिन मीन्स जो ऑयल होता है, कैरोसिन ऑयल के अंदर इसको हम स्टोर करेंगे। अब क्वेश्चन क्या आता है बेटा, वाई सम मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर कैरोसिन और पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स या फिर कैरोसिन में हम मेटल्स को स्टोर क्यों करते हैं? वाई? बिकॉज metals like sodium and potassium are highly reactive and they react with water and catches fire। ये एयर में अपने आप से रिएक्ट करके फायर को कैच करते हैं, इसीलिए इनको हम किस में स्टोर करके रखते हैं बेटा? कैरोसिन में। सोडियम को कभी भी ओपन में नहीं रखते हैं, हमेशा इसको कैरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट ऑन हीटिंग। मैग्नीशियम ने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं की, तो हमने मैग्नीशियम को क्या किया बेटा? यहाँ पर हीट किया। लाइक दिस देर आर सम अदर मेटल्स लाइक जिंक। जिंक react with boiling water, iron react with steam, indicating that these are less reactive metal। जिंक एंड जो आयरन है वो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए उनको बॉयल करना पड़ रहा है, स्टीम देनी पड़ती है, तब जाके वो रिएक्शन करते हैं। मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। क्लियर हुआ बेटा? हमने 3 कैटेगरी बनाई। फर्स्ट मोस्ट रिएक्टिव, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स आर सोडियम एंड पोटेशियम, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स आर जिंक एंड आयरन। मेटल्स दैट डू नॉट रिएक्ट, जो रिएक्ट करते ही नहीं है, सो आंसर विल बी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड मर्करी। दीज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, दैट्स वाई ज्वेलरी वी यूज्ड मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम टू मेक ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए इनका यूज क्यों करते हैं? बिकॉज दीज आर नॉट रिएक्टिव। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस बन रहे बेटा, लिसन इट केयरफुली एंड लर्न। Non-metals do not react with water, therefore some reactive non-metals are stored in water to prevent their reaction with air। मेटल्स वाटर के साथ में रिएक्ट करके कौन सी गैस को प्रोड्यूस करेंगे बेटा? हाइड्रोजन गैस। बट नॉन मेटल्स वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते। सम रिएक्टिव नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद एयर। नॉन मेटल्स को किस में स्टोर करते हैं? वाटर में, क्योंकि नॉन मेटल्स वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस इज kept in water to prevent its contact with air, it catches fire on the reaction with the air। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है बेटा, और फॉस्फोरस को हम वाटर में स्टोर करेंगे। किस लिए? क्योंकि फॉस्फोरस वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता, एयर के कॉन्टैक्ट में आके ये फायर को कैच करेगा। क्लियर हुआ? बट जो सोडियम और पोटेशियम की बात कर रहे थे हम, वो भी फायर को कैच करता है, बट इनको हम वाटर में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि मेटल्स वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, इसीलिए हमने इसको किस में स्टोर किया था बेटा? कैरोसिन में। ठीक है, बट नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर करेंगे क्योंकि नॉन मेटल्स वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते। सो एक लास्ट एक्टिविटी कर लेते हैं हम, रिएक्शन विद एसिड। Take some iron nails and clean their surface by rubbing them with sandpaper। हमने क्या किया बेटा? आयरन नेल्स लिए एंड इन आयरन नेल्स को हमने रब किया सैंड पेपर से, ताकि आयरन नेल्स में जो भी रस्टिंग है वो रिमूव हो जाए। नाउ पुट देम इन टेस्ट ट्यूब एंड देन ऐड सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Invert another test tube over the mouth of first test tube. You will observe that evolution of gas in the form of bubbles। Now carefully bring a burning splinter. As you can see, we are taking burning splinter near the mouth of this test tube. It will produce a popping sound, and in this case hydrogen gas will evolve। So it is clear to you beta? रिएक्शन विद वाटर, जब हमने मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन कराई थी, सेम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी। लाइक दिस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, मेटल्स को जब एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे, हम यहाँ पे कौन सा एसिड लेके चल रहे हैं? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेटल्स की जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई, इन दिस केस हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व। इस केस में भी हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। आपको पता कैसे चला? जब आपने मैचस्टिक को इसके पास लेके गए, इट विल बर्न एंड प्रोड्यूस अ
क्रैकलिंग साउंड, इसमें से आपको हल्की सी, जब आप मैस्टिक को बर्न करते हो तो आपको साउंड आती है ना, एक हल्की सी आपको साउंड सुनाई देगी. नाउ रिएक्शंस आर गिवन टू यू. वी आर टेकिंग आयरन. आयरन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हम क्या बता रहे हैं बेटा, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड. मेटल, which metal we are taking here? Iron. Metal react with acid. Acid is a hydrochloric acid. Then it will form iron chloride, FeCl2, and hydrogen gas will be evolved. Evolved means liberated. Now balance the equation. In product 2 chlorines are there. In reactant there is 1 chlorine. Multiply this by 2. Now your equation is balanced. Hydrogen are 2 in reactant, in product hydrogen are 2. So hydrogen are balanced, chlorine are balanced. Iron is 1. In this case reactant iron is also 1. So iron, chlorine and hydrogen all are balanced. This is your balanced equation. So it is clear to you. When metals react with acid, hydrogen gas is evolved. In both the cases, when metals react with water as well as acid, then hydrogen gas is liberated. Next is we are taking zinc. When zinc react with sulfuric acid, then zinc sulfate will form and hydrogen gas is evolved. So reaction with acid is clear to you. When metals react with water as well as acid, then hydrogen gas is liberated. Some metals like copper, lead do not react with dilute hydrochloric acid, they react with sulfuric acid. Why? Because as you know that dilute hydrochloric acid is a weak acid, but sulfuric acid is a strong acid. Metals like copper and lead, they are least reactive and they do not react with hydrochloric acid, they will react with the sulfuric acid. But they do not liberate hydrogen gas. Metals like gold, platinum, they do not react with the dilute acid. Some metals react with sulfuric acid, but they do not liberate hydrogen gas. Known metals do not react with acid. Some known metals like sulfur, phosphorus react with hot concentrated sulfuric acid, but they do not liberate hydrogen gas. So it is clear to you beta, metals react with acid and they liberate hydrogen gas, but known metals they do not produce hydrogen gas, whether they react or not react. मतलब जब वो रिएक्ट करते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करते. So today you have to learn chemical properties. First is reaction with oxygen, next reaction with water, and third is reaction with the acid. And try to do these reactions at your on your rough notebook beta. Okay beta, have a nice day.